India's boundless traditions and diversity breathes life into every corner of the land. Beyond the glare of bustling metros, there exists a different rhythm. An India where communities are tightly knit by age-old customs, heritage and sports. At Usha, we believe in the transformative power of play. Rooted in tradition, traditional sports are a living heritage. They are cultural lifelines that bridge generations, strengthen communities, and nurture holistic well-being. This initiative transcends the playing field. It is about honoring our roots and creating lasting change in the heart of rural India. Now Usha Play returns with renewed vigor, sharing powerful sporting legacies across the nation. In the western skies of India, where the Sabarmati winds blow past old city walls and fertile plains, to the ends of the Kutch desert, lies a long-cherished sport of Gujarat. This is where threads tighten, paper wings lift, and entire communities look upward as one. It is here that a timeless tradition takes flight. Kite flying, or colloquially called पतंगबाजी। गुजरात में काइट फ्लाइंग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक ऐसा त्यौहार है कि पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन गुजरात में तो इसका इतना क्रेज़ है कि आपको पूरा गुजरात बंद मिलेगा। लोग छत पे चले जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक शुभ दिन है। लाखों लोग छत पर जाकर सूर्य की जो बदलाव आ रहा है उत्तरायण की ओर, इसको सेलिब्रेट करते हैं। Dating back over a millennium, kite flying is believed to have reached India through ancient exchanges with Buddhist missionaries of China, before evolving into a royal pastime. For Pavan Solanki, founder of Kitist India, curiosity turned into a movement. From organizing kite festivals across the country to representing India in Indonesia and Thailand, he has carried more than 25 handcrafted kites to international skies. जो इसकी हिस्ट्री है वो तो चाइना से शुरू हुई थी, पर यहाँ जो ऐसा कहा जाता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट जैसे मैसेज भेजना, ये एक चीज़ इसके अंदर होती थी। इनडायरेक्ट भी मैसेज भेजते थे ये लोग। यहाँ अभी यही चीज़ एक टेरेस से दूसरे टेरेस पर भी लोग ये मैसेज भिजवाने के लिए करते हैं। गुजरात में हम भी ये किया करते थे, पर ये एक मैसेज से लेके धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती गई, काटा काटी पे आ गई, और ये एक पूरा एक महोत्सव बन गया है। मेरी ऐसी थीम है जो मैं पेट्रोटिक थीम पे काइटें बनाता हूँ अभी, तो जहाँ भी जाऊँगा बस मेरा इंडिया ही दिखेगा आकाश में, बस यही ख्वाहिश है मेरी। Its cultural roots run deep, flowing during seasonal shifts, national celebrations like Makar Sankranti and Baisakhi, and most vividly during Uttarayan. One such custodian of this tradition is Dr. Yunus Bhavnagri. Flying kites since childhood, his fascination with all things airborne gradually found its anchor in Patangbazi. Now at 75, he has flown over 100 kites and designed his own distinctive Babla Patang, shaped by years of experimentation and instinct. I am 75 years old और लगभग मैं तो एक्चुअली फ्लाइंग तो बचपन से ही कर रहा हूँ, मगर ये जो पर्टिकुलर टाइप की जो फ्लाइंग है ट्रेन, ये 25 साल से मैं कर रहा हूँ। कोई भी फ्लाइंग चीज़ को देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है, उसी हिसाब से ये काइट फ्लाइंग का भी चल रहा है। मेरे खुद को भी ये आदत है बड़े बड़े पतंग बनाने की, बाम्बू से कट करके उसके कमान डड्डा वगैरह बना के काफ़ी बड़े बड़े प्लेन बनाते काइट बनाते हैं और उड़ाते थे ये। उसके बाद ही जब से ये काइट फेस्टिवल शुरू हुआ, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल,
तब से मैं कुछ फॉरेन गया, वहाँ से भी लेके आया, कुछ फॉरेनर्स आते उनसे मैंने परचेज़ भी किया, खुद मैंने बनवाई भी, मैंने बनाई भी। और ये अभी खास करके ये मेरा बाबला काइट जो है, ये ट्रेन, ये थोड़ा फेमस हो गया है क्योंकि ये टाइप का काइट यूजुअली बनते नहीं है। Gujarat today is known as the kite capital of India. As the sun begins its northward journey, cries of Kai Po Che echo across rooftops, signaling not just victory but celebration. Few embody this spirit like Ranjit Gohil. अगर इसको काइट को एक सोच से ले ले, एक स्पोर्ट्स में ले ले, एक हेल्थ के लिए ले, मेडिटेशन भी है, सोच बदलती है, प्रेरणा भी मिलती है, तो मैं मानता हूँ ये इसको फेस्टिवल होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में होता है, इंडिया में बहुत जरूरी है। A participant in the International Kite Festival for over 15 years, he founded the Divyang Kite Flying Club, the only kite club in India exclusively for persons with disabilities, expanding the sky for everyone. कई बार समाज से हमें विचारा तुम नहीं कर सकते, नेगेटिविटी मिल रही थी, तो मेरी सोच में मैंने बदलाव लाया कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। तो उसके सोच बड़ी करने के लिए, जैसे हवा के पतंग तब उड़ता है जब हवा होती है, तो ऐसे मेरे जीवन के अंदर मेरी सोच में एक लगन, मिशन और ऐसा आया। The sport demands more than enthusiasm, wind direction, tension, paperweight and technique. Each variable matters. दो सेगमेंट है इसके अंदर, एक है सिंगल लाइन काइट, इन्फ्लेटेबल काइट्स, और दूसरी है स्पोर्ट्स काइट। स्पोर्ट्स काइट में एक होता है रिवॉल्यूशन फ्लाइंग और दूसरा होता है स्टंट काइट। इस तरफ जो सिंगल लाइन काइट होते हैं वो एक ही सिंगल लाइन से उड़ते हैं, और जो इन्फ्लेटेबल काइट्स है वो हवा में ऐसे बलून कैसे होता है उस टाइप से पूरा बनता है ऑब्जेक्ट, ऊपर से हवा जाती है, वो भरता है और वो फ्लाई होता है, जिसको पायलट की ज़रूरत रहती है ऊपर। As the next generation, Rizwan Gohil has grown up beneath these skies, watching his father and eventually sharing his passion. From careful practice to competitive precision, the next generation is learning that every lift, every cut is earned. ये एक आर्ट है, क्योंकि इसके अंदर काइट कटिंग करना एक ट्रिक है। वो ट्रिक के लिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्या आपको उसके नीचे से कटिंग करने के लिए जाना है, उसका काइट काटने के लिए, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए कि उसके नीचे से अपने कैसे जाना है, उसका रुख, पतंग को रुख देना पड़ता है, उसके लिए उसके नीचे ले जाना पड़ता है, बहुत सारी ट्रिक्स होती है। काइट चढ़ाना मेरा एक पैशन है, मेरे को बहुत शौक है इसका। तो मैं समझो 2 महीने पहले दिवाली से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते पतंग उड़ाना, हर संडे को चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के जितने भी दिन होते हैं हम लोग सुबह से 7 बजे से चढ़ जाते हैं मॉर्निंग में, और रात को यहाँ पे नाइट टाइम फ्लाइंग भी करते हैं हम लोग। वाइट पतंग उड़ाते हैं रात के टाइम, तो हम लोग, मैं तो 1-1 बजे उतरता हूँ धाबे पे से। At the heart of the contest lies the manja, the coated string that determines victory. Prepared with skill and patience, it is as crucial as the kite itself. टोटल धंधा कॉटन डोरी का है। कॉटन डोरी के अंदर हम सरेस और कांच रखते हैं, उससे क्या है कि उससे कुछ नुकसान नहीं होता। Sustaining this tradition requires more than nostalgia. It requires support, visibility, and platforms that bring communities together. As Gujarat's skies fill each year with color and conviction, kite flying remains more than a seasonal sport. ये पार्ट ऑफ गेम है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सबकी काट ही काट करो, आपकी भी कटना ज़रूरी है। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा या गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एज ए इंट्रोड्यूस करेगा ये स्पोर्ट्स काइट्स को, रिवॉल्यूशन को, तो ये स्पोर्ट्स को हम इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। पतंग उत्सव से लाखों लोगों को रोजगारी भी मिलती है, और उसमें जो आत्मनिर्भरता की जो बात है वो इससे मतलब साबित होता है। आने वाले दिनों में पतंग महोत्सव जैसी जो हमारी जो ये महोत्सव है
और आगे बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में जो गांव के लोग हैं और इससे जुड़े हुए हैं, जो पतंग बनाने या तो उसके साथ जो जुड़े हुए रिलेटेड है, उसको भी रोजगारी मिलेगी। अगत जो ये स्पोर्ट्स का जो हमारी जो गेम्स है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव तक जो इवेंट करने के लिए, और जो हमारा स्पोर्ट्स विभाग है, तो वो नीचे तक ये जो पतंग उत्सव का और दूसरी पीढ़ी ये जो खेले और ये पतंग महोत्सव का जो उत्सव है और भी लोग ज़्यादा मनाए, इसके लिए सरकार चिंतित है। और जो भी उसके लिए मतलब में जो व्यवस्था पूरी करनी होती है, उसके लिए भी सरकार कटिबद्ध है। In the skies of India and Gujarat, the vibrant colors and shapes of the kites still bring joy and community together, a sport that carries both history and art with it. In Kheda, the sky becomes more than a backdrop. It transforms into a vast shared canvas of possibility. Away from the crowded terraces and onto an open Maidan, an arena gathers people of diverse abilities, inviting them to rediscover meaning in Gujarat's beloved sport of Patangbazi. जब उत्तरायण मकर संक्रांति होती है तो विदेशों से यहाँ आ जाते हैं और 10 दिन रहते हैं। उसके छत के ऊपर, पतरे के ऊपर बच्चे बड़े बूढ़े सब चढ़ के चढ़ाते, एक माहौल है ये। A community kite flying celebration drew together over 100 participants, reflecting a simple truth. For Gujaratis, kite flying is never merely a sport, but a cherished cultural ritual that lives in the heart of the people. उषा इंटरनेशनल के साथ मिलकर हमने ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमने ग्राम्य स्तर पर जो दिव्यांग व्यक्ति जो है, गांव के जो बच्चे हैं, उन लोगों को इस इवेंट्स में जोड़कर उनकी खुशी हमने महसूस की कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे इवेंट्स को एंजॉय किया। In a traditional sport that has endured for centuries, it is no surprise that a kite festival is where boundaries dissolve and skill rises above age or ability. ये किसी सेलिब्रेशन के माहौल में है, तब वो किसी दिव्यांग जन को अपनी तरह ही कुछ अच्छा कार्य देखता है तो उसकी विचारधारा बदलती है। क्योंकि मैं खास कहना चाहूँगा कि दिव्यांग जन जिनके हाथ ठीक है, पाँव में तकलीफ है, सुनने में तकलीफ है, वो काइट फ्लाइंग के लिए विकलांग है ही नहीं। Bringing together veteran international players with young aspiring students under the leadership of Ranjit Gohil, Kheda becomes a stage where the lines of ability blur and childhood joy, skill and inclusion take center stage. इंक्लूजन की बात करते हैं, समाज के साथ हम दिव्यांग लोग जुड़े हैं और हमारी क्लब जो मीट इंटरनेशनल दिव्यांग काइट क्लब है, उसको टूरिज्म सपोर्ट करता है और हम पूरी दुनिया के साथ पतंग चढ़ाते। हमारे साथ दोनों हाथ में से चंदू भाई है, हमारे साथ दूसरे जो व्हील चेयर यूजर, हम पूरे के साथ चढ़ाते हैं। हम जब बचपन में पतंग उड़ाते थे तब ऐसा हुआ कि उसके बाद 12 साल में मेरा एक अकस्मात हो गया और मेरे दोनों हाथ चले गए। मगर मेरे दोस्त लोग मेरे को प्रोत्साहित करने के लिए ढाबा पर ले जाते थे और वो बोलते थे कि तुम पकड़ के रखो और ये पतंग तो तुम भी उड़ा सकते हो। और इस तरह से इस फेस्टिवल में हम इन्वॉल्व हो गए और पिछले 15 साल से हमारा मीट काइट फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का एक ग्रुप है जो दिव्यांग लोगों को स्पेशली इस फेस्टिवल में इन्वॉल्व करता है। और हमें बहुत मज़ा आता है। हम अलग अलग टाइप की काइट उड़ाने का आनंद लेते हैं और बहुत मज़ा आता है हमें। हम जैसे काइट उड़ाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद उड़ रहे हैं। हमारे पास पैर नहीं है पर हम उड़ रहे हैं, ऐसा एहसास कर रहे हैं। Families and volunteers move across the ground, offering encouragement and support, while vibrant patangs rise steadily overhead. बहुत अच्छा लगा मेरे को
कि मेरा छोकरा ये चल नहीं पाता, ये पतंग चगा के बहुत खूब मेरे को मजा है, इस घर का ही सब टेंशन भूल सकी हूँ। For some, this is their first experience holding the string. For others, a thrilling experience of possibility, learning and inclusion. અને અમને ખૂબ જ મજા આવી. જો કે હું તો બ્લાઇન્ડ છું, હું બ્લાઇન્ડ હોવા છતાં મેં નોર્મલ લોકો સાથે ઉત્તરાયણ સેલિબ્રેશન કરેલું જ છે, પણ આજે જે મજા આવી છે એ ક્યારેય પણ નથી આવી. पतंग एक त्यौहार के रूप में तो सबसे बेस्ट त्यौहार है, क्योंकि उसमें कोई नात जात या भेदभाव का कोई वो है नहीं, क्योंकि हर नात जात के लोग वो पतंग का त्यौहार मनाते हैं. इसलिए मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये त्यौहार पूरे इंडिया में फेमस हो जाए. Just as Dr. Yunus crafted his own Babla Patang, the dream of a thoughtfully designed kite for the blind is within reach. घुघरी वाली पतंग लानी चाहिए. वो घुघरी वाली पतंग आती है, लाएंगे तब जो आवाज़ से वो हमको पता चलेगा इस तरह हमारी पतंग उड़ती है. Ranjit Gohil and his team demonstrate that Patangbazi is not a game reserved for the abled, but a game that belongs to all, and perhaps even a quiet form of therapy for persons with disabilities. काइट उड़ाना ये एक आम बात नहीं है, ये उत्सव जरूर है, मगर इससे बहुत बड़ा आनंद मिलता है. लोगों को तुम प्रोत्साहित कर सकते हो. जिनके मानसिक रूप से जो लोग स्वस्थ नहीं है, उनको हम एक थेरेपी के रूप में ले तो ये बहुत बड़ा काम है, और उनका मानसिक विकास भी हो सकता है. उनको एक अनूठा आनंद भी इससे मिल सकता है कि ये बच्चे, जब आप देखते हो ग्राउंड में कि आज जो लोग अंध है वो भी अच्छी तरह से अपना इस फेस्टिवल का मजा ले रहे हैं. In Gujarat, kite flying has always been intergenerational, a passion passed on with lessons in balance, patience and precision. But for a tradition to endure, it must grow beyond memory into meaningful opportunity. मैं तो बोलता हूँ काइट फ्लाइंग में बढ़ावा देना चाहिए. जो काइट फेस्टिवल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात के, हर डिस्ट्रिक्ट की संस्था है, उसमें ऐसे उत्सव होने चाहिए. बच्चे जो है उनका मानसिक स्तर ऊपर आएगा, मोबाइल से बाहर आएंगे, उनकी सोच में फ़र्क पड़ेगा, और ऊंची सोच ऊंची उड़ान. ज़रूरी है आज जो हम लोग डिजिटलाइजेशन के एज में जहाँ पर बच्चे आज ज़्यादातर टाइम स्क्रीन टाइम उस पर बिता रहे हैं, मोबाइल और लैपटॉप्स और गैजेट्स के ऊपर, इस समय में ये सारे जो हमारी पारंपरिक फेस्टिवल्स है और जो स्पोर्ट्स है उसको हमें आज फिर से जीवन करने की ज़रूरत, ताकि बच्चे जो है घर से बाहर निकले, उनका फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के माध्यम से हो सकती है. By supporting inclusive platforms like this in Kheda, Usha strengthens the very foundation of indigenous sport, ensuring that kite flying continues not only as a seasonal festivity but as a living, evolving practice. Recognizing this, voices at the helm of policy and national growth continue to emphasize the importance of strengthening grassroots and rural sport across India. Rural India is the birthplace of Indian sports. और इसके माध्यम से हमारे सभी ट्रेडिशनल गेम्स की शुरुआत हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से हुई है, कि जिसके माध्यम से हमने हमेशा से हमारा ट्रेडिशनल खेलों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है. और उसका पहले से ये मकसद रहा है कि हम कम्युनिटी को एक साथ जोड़ें, डिसिप्लिन इसके माध्यम से हम सीखें, खुद को मेंटली फिजिकली फिट रह सके. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का भी यही प्रयास है कि खेलो इंडिया के माध्यम से हम ट्रेडिशनल गेम को प्रमोट करें, और हर राज्य की जो खासियत रही है उसके माध्यम से हम इस गेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुँचाएँ और दुनिया के सामने भी हम लेके जाएँ. Kite flying may not be formally codified as a competitive sport, yet it remains deeply woven into the cultural and traditional memory of Indians across the nation. The next generation inherit more than a pastime. They inherit a shared legacy, written each year across the boundless skies of Gujarat.